everyone. Let's back to our sessions. So today we are going to read about the basics of biotech and biology, which is the science and tech part from GS paper. And we're going to start with some basics, and I'm going to cover the most of the static part that is required, and just have some trust and get done with your science and tech from GS part 3. So we'll start with the cell part. So as we have heard before, cell cell is like the basic unit of life. We all have heard cell is the basic unit of life. So as we know, like suppose this is a cell. Okay, this each cell has some multiple subcells inside it. I have made it in the shape of a block, but imagine like cell might be of any shape. Okay, so each organism, suppose let's assume this is an organism, be it a cat, be it humans, be it dogs, and etc. Like aquatic animals, microorganisms, bacteria, everyone is consisting of innumerable cells, like many multiple cells. Okay, so cell is a basic unit of life, and cell, each single cell, like this itself has the capacity of independent existence. Okay, independent existence. Each cell can survive independently. Okay, each cell, each one of these can survive independently. They have that capability. So, cell is a very, now imagine how microscopic level we are talking about. Like, cell is the basic unit of life, and every cell, every single cell, like, suppose there's a human body. Let's assume this is our body, and this body is consisting of like crores of cells, or even more. Okay, and each part particular cell is having the capacity of independent existence. So imagine how laboratory, how minute way it happens, and what is the significance of such a minute organism. And now we'll study about cells components. Okay, cells components. The major part of our human body. If we see about our human body, the major part of our body is what it is. It's brain. Okay, brain is the major part of our body. Without brain, nothing functions. Everything is interconnected with our neurons, with axons, with dendrites. These are all functions of brain. I'll teach you later, don't worry. But mainly our body functions because of brain. Brain के बिना कुछ हो ही नहीं पाएगा. It's all brain. Similarly, nucleus is the brain of the cell. This is a major component of a cell. Okay, without nucleus, nothing happens. Every functioning, it controls all the function of cell. All the functions of cell are controlled by the nucleus. Now we'll study. Suppose see, suppose this is our body. Okay, or imagine, yeah, this suppose is a body. Okay, and imagine this is our skin. Skin is the surface. Yes or no? Anything. Suppose a doctor is like inserting an injection into a body. So the injection is so the injection is okay, the injection is being inserted into a skin and then underneath. Yes or no? In the similar manner, this is a cell. Suppose this is a cell. Okay, this is the nucleus of a cell. This is the cell. This is the cell membrane. Cell membrane is the outer covering of the cell. Okay, do you get that? Suppose this is a nucleus. Okay, this is the cell. So nucleus, this is cell, and this is the membrane. This is the cell membrane or plasma membrane. It is known as plasma membrane also. You get my point? I know it's getting a little weird. Slowly things will fall into its own place, okay? Just have some patience. Then, so what we read? We read about nucleus, but listen to me carefully because I'll like multiple iterations, I'll keep on saying those terms. Just if you keep on hearing me, you'll remember it. With me itself, just as soon as the video gets over,
You'll recall it. You're done with the topic itself. Then and there. After that, just take 2 to 3 minutes more and just revise it once again. Another time. Okay. Nucleus, the brain of cell, controls all function of cell, and then this is the cell membrane. This is the cell membrane or the plasma membrane. So there are 2 to 3 terms. First is cell, which is the basic unit of life, and then each cell of independent existence, and then there's a nucleus, which is the brain of the cell. It controls all functions of the cell. Then there's cell membrane or the plasma membrane, which like which surrounds the cell. There are many other organelles as well. Inside a cell, there are many organelles. There might be nucleus, there might be cytoplasm, there might be many things. But the one which covers it is known as the cell membrane or the plasma membrane. The next part is the cell membrane is also known as the boundary of the cell. Okay, the cell membrane or the plasma membrane is also known as the boundary of the cell. So this is the boundary of the cell. Then there is a fluid matrix, like ours, like our body. We are talking with our body, analogous to our body. Our body consists of blood cells. They are of different types. There are RBCs, there are WBCs, there is platelets. As we have heard recently, dengue is like happening in like multiple folds, right? All over. So it is because of this cell of our body is getting affected, and due to the loss in platelet count, we are getting we are suffering from dengue. RBC, you have heard RBC, red blood cells or the red blood corpuscles. They consist of hemoglobin. Hemo means iron. If we study, there will be a lot of things to read, but we'll not go into deep. We'll just stick to whatever our necessities are. WBC may be neutrophil, basophil, eosinophil, lymphocyte. There's there are many things. Okay, monocyte, ऐसा बहुत सारे होते हैं. We'll read about it all in detail, but जो ज़रूरत है पहले we'll cover it. So cell membrane, plasma membrane, boundary of cell बोलते हैं, and there's a fluid matrix which is known as cytoplasm. जैसा blood flow करता रहता है ना throughout our body, which is fluid matrix cytoplasm keeps on floating. Okay, then हम सब पढ़े mitochondria, the powerhouse of the cell. It provides energy. एनर्जी का नाम आते ही पावर हाउस ऑफ द सेल नाम आते ही ओके पावर हाउस ऑफ द सेल नॉट पीएच मत समझ लेना बेसिक एसिडिक वाला पावर हाउस लिख लेती हूँ पावर हाउस ऑफ द सेल ओके क्या क्या पढ़े जस्ट एक साइड में लिख देती हूँ सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल मेम्ब्रेन होता है जो कवर करता है सेल को शील्ड करता है सेल को प्रोटेक्शन देता है जस्ट द वे आर स्किन प्रोटेक्ट्स अस आवर बॉडी ठीक है ना देन देर इज nucleus which is the brain of the cell. I hope I am audible. This nucleus, I please forgive me if there's any audio lag or anything like that because I'm getting back to this after like hell a long period of time. I hope with some of your support I can push myself even to do better videos, to give better content and to teach you in a better way. Okay. So cell is a basic unit of life. सेल को कवर करता है क्या सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कितने बार बोल चुके हो इट मस्ट बी मोर देन 10 टाइम्स दैट आई वुड हैव अटर्ड दीज वर्ड्स न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ सेल ठीक है ना जैसा हमारा नर्वस सिस्टम ओके नर्वस सिस्टम हाउ डज इट एक्ट नर्वस सिस्टम एक्ट्स इनटू ऑल आवर ब्रेन सारे ब्रेन को नर्वस सिस्टम एक्ट करता है वैसा न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल ठीक है फिर क्या पढ़े फिर पढ़े हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस एनर्जी देता है ठीक है ना पावर हाउस ऑफ सेल एनर्जी देते हैं और क्या पढ़े साइटोप्लाज्म यस मैं जानबूझ के ऑर्डर वाइज क्योंकि हर चीज़ एग्जाम में ना सीरियली नहीं आता है कहीं से कुछ भी एंड ऐसा क्वेश्चंस भी नहीं आने वाले कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं या साइटोप्लाज्म को बोलते हैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगी मैं इट्स टू डीप ओके यू हैव टू बी कॉन्सेप्चुअली क्लियर माइटोकॉन्ड्रिया
पावर हाउस ऑफ द सेल, साइटोप्लाज्म, फ्लूइड मैट्रिक्स, याद है ना? चलो एक जस्ट बेसिक डायग्राम कर देती हूँ। सपोज इसको सेल पकड़ लो, ठीक है ना? ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, कवर करता है आउटर कवरिंग। इसके अंदर हम ऐसा कुछ कर देते हैं, ओके? दिस इज सपोज सेल ऑर्गेनल, ओके? ऐसा बहुत सारे सेल ऑर्गेनल होंगे, ठीक है? सपोज इसको हम न्यूक्लियस समझते हैं, ओके? ऐसा बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होंगे, किसी का कुछ भी काम हो सकता है, आगे जाके पढ़ेंगे बहुत सारे, धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ। फिर अंदर होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है? अभी पढ़ेंगे ग्रोथ कैसा होता है। लाइक एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, वो डिवाइड होता है कि नहीं? ऐसा दो पार्ट में होगा, फिर ये डिवाइड होता है ऐसा ऐसा होके मिलियंस ऑफ फोल्ड में डिवाइड होता है। लाइक देखो, यहाँ से यहाँ 1 to 2 हुआ, 2 to 4 हुआ, समझ रहे हो कि नहीं? फिर ये इंडिविजुअली 2 में हुआ, 4, देन अगेन 6, 8, ऐसा चलेगा, ठीक है ना? दिस गोज ऑन। सो ये क्या है? इसका मतलब ये है कि दिस स्मॉल ऑर्गेनिज्म इज जनरेटिंग 1 से 8 कर दिया, धीरे धीरे 64 तक भी पहुंच जाएगा। नॉट अ बिग डील, ओके? इट हैपेंस इन सेकेंड्स। बट कैसे होता है? वो होता कैसे है? लाइक हम ह्यूमन बीइंग, वी गिव अ birth to a baby. We give, suppose that baby, okay, that baby gives birth to two more babies, baby 1 and baby 2. Then suppose baby 1 gives birth to one more baby. क्या हुआ? This is being related to this somehow, है कि नहीं? ऐसा ही ट्रांसमिशन होता है, बट ये रिप्रोडक्शन से होता है, ये ग्रोथ से होता है। एंड इवन इंडिविजुअली हम भी जब छोटे थे, लाइक वी, सपोज हम ऐसा थे, लेट्स अज्यूम 2 साल के थे, जब 5 साल के होते हैं, we get little bigger, our hands get little bigger, our legs get bigger, larger. फिर जब हम 8 years के होते हैं, we even grow more. ऐसा चलता ही रहता है। And then we reach to a peak period. फिर धीरे धीरे अगेन वी, इट्स जस्ट अ सर्कल, ऐसा चलता 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 है, एक पीक पीरियड आता है, फिर धीरे धीरे वी गेट टू आवर ओल्ड एजेस। ये कैसा होता है? ग्रोथ होता है। ग्रोथ इज प्रोग्रेसिव एंड अगेन रिग्रेसिव आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सो ग्रोथ लाइक एक्ट्स लाइक दैट। तो ग्रोथ कैसा, ग्रोथ का मतलब क्या होता है? सो ग्रोथ होता है एक स्मॉल बेबी, ठीक है ना, जब पीक पे पहुंचता है, दैट इज प्रोग्रेसिव ग्रोथ, ओके? सो एक सेल ट्रांसफर होता है, मैंने दिखा है बार बार, ऐसा होके मल्टीपल ट्रांसफर होगा, ओके? और ये ट्रांसफर होके कहीं ना कहीं तो स्टोर होता होगा ना, इनटू सम ऑर्गेनिज्म, कहीं पे भी कुछ भी। सो ये स्टोर होके कहाँ रहता है? जो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, ठीक है, दैट इज नोन एज डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, okay? So deoxyribonucleic acid is the one who stores all information, okay? अगर हम इसको देखें, स्ट्रक्चर कैसा होता है? डबल हेलिकल, हमें पता है, we know that we have read somewhere DNA is double helical in structure. So this is known as double helical. सपोज हम इसको जूम करेंगे, ठीक है? तुम जब जूम बहुत करोगे ना, तुम्हें ऐसा दिखने लगेगा, एक पतला सा छोटा सा स्ट्रैंड, जो कि और ज्यादा कंडेंस कर दोगे ना इसको, बिकॉज इट्स वेरी लॉन्ग, गेटिंग माई पॉइंट? जब और ज्यादा कंडेंस कर दोगे ना, वो ऐसा दिखने लगेगा, क्योंकि वो अंदर ही अंदर कॉयल होके रहता है, ठीक है? दैट इज नोन एज क्रोमैटिन, ओके? फिर इसको और ज्यादा कंडेंस कर दोगे, फर्दर कंडेंस कर दोगे, देन यू विल सी क्रोमोसोम्स, ठीक है? और जब कंडेंस करोगे, ऐसा 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 देखिए, क्रोमोसोम्स, ओके? तो हम क्या समझे? हमें पता है न्यूक्लियस इज सिचुएटेड इनसाइड द सेल विच इज द ब्रेन ऑफ द सेल। इसका फंक्शन वैसा होता है। सपोज अभी इमेजिन करो, ये सेल है, सपोज दिस इज न्यूक्लियस, ओके? एक्सक्यूज मी, सो दिस इज न्यूक्लियस। इसको हम जूम करेंगे, ओके?
जब जूम करोगे यही दिखेगा ऐसा, है कि नहीं? इसको और जूम करेंगे तो ना ऐसा दिखता है वो। दिस इज न्यूक्लियर लस। एंड दिस इज नोन एज क्रोमैटिन, एंड दिस इज नोन एज, जैसे सेल को सेल मेम्ब्रेन शील्ड करता है ना, वैसे ये मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके। दिस इज क्रोमैटिन, दिस इज न्यूक्लियर लस। क्रोमैटिन इज कंडेंस्ड डीएनए। कंडेंस्ड फॉर्म में जब डीएनए को हम जूम करके देखे थे तभी देखे थे ना, याद आ रहा है? और एक बार दिखाती हूँ। ये डीएनए था, स्टोर करता था, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था। इसको हम जब जूम इन किए थे, एक सिंगल से थ्रेड आया था, सिंगल सेल थ्रेड को और ज्यादा जूम इन जब करेंगे तो ये कंडेंस होके क्रोमैटिन था, क्रोमैटिन को और ज्यादा कंडेंस करेंगे तो क्रोमोसोम्स आ गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेंट्रल डॉगमा। ठीक है, उसको सेंट्रल डॉगमा बोलता है एंड इट्स वेरी फेमस। एंड उसको भी मैं मिनिमम 10-15 बार तो रिपीट करूंगी ही करूंगी, ओके, और इवन मोर। हमने डीएनए पढ़ा, क्या है? डीएनए से आरएनए होता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए हम प्रोटीन करते हैं, आरएनए से प्रोटीन्स होता है, और अमीनो एसिड्स भी उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ओके, आरएनए इज नोन एज सिंपल राइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड प्रोटीन से एंजाइम्स भी होता है। ओके, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन होता है, आरएनए से प्रोटीन्स होता है ट्रांसलेशन। अब हम पढ़ेंगे, बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। हमें पता है हम जो शुगर खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? जैसे सॉल्ट को टेबल सॉल्ट बोलते हैं, वैसे टेबल शुगर भी होता है। ओके, उसको हम सुक्रोज बोलते हैं। ठीक है, टेक्निकली जो समझ नहीं आ रहा है मेरे को बता दियो, मैं शायद बार बार, या फिर वीडियो एंड तक देखो, मैं बार बार रिपीट कर रही होंगी। अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो फिर रट लो, ठीक है, क्योंकि यू हैव लेस टाइम, एज यू नो, एंड यू हैव टू गेट योर सिलेबस डन। एग्जाम इज अप्रोचिंग, so you better get things done quicker. So this is table sugar जो हम डेली कंज्यूम करते हैं। इसमें क्या ही समझना है? तुम खुद बोलो, चीनी नहीं खाते हो क्या? शक्कर नहीं खाते हो क्या? चांसनी बनता है ना मिठाई बनने वक्त, दैट शुगर, राइट? टेबल शुगर, उसको टेक्निकली सुक्रोज बोलते हैं। सुक्रोज के इन द फॉर्म ऑफ सुक्रेज, उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में। फ्रुक्टोज इज बेसिकली फ्रूट्स से जो शुगर मिलता है, ओके। एंड देन we enter some more enzymes. यहाँ पे मैं क्रेब्स साइकिल अभी लिख रही हूँ, इन लेटर स्टेज एक्सप्लेन यू व्हाट्स क्रेब्स साइकिल। एंड यहाँ से हमें कुछ एनर्जी मिलता है, इट गिव्स अस एनर्जी, ओके। अब हम देखेंगे जब सेल रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है, अगर एक सेल रिप्रोड्यूस करता है, क्यों करता है? नया सेल बनाने। अगर ये एक सेल है, ये बेबी सेल्स बनाना, तो ये न्यू सेल्स नहीं हुए, ये ओल्ड हो गया ना, ये रिप्रोड्यूस कर चुका है, फिर ये न्यू सेल्स ओल्ड बन के और न्यू बनाएंगे, राइट? सो न्यू सेल हैज टू फॉर्म। तो न्यू सेल के पास कुछ नया एंजाइम्स होंगे, एसेंशियल एंजाइम्स न्यू सेल के पास। और वो एंजाइम्स कहाँ से आते हैं? दैट इज कमिंग फ्रॉम डीएनए। आई नो थोड़ा क्रिटिकल हुआ होगा, अभी समझ नहीं आया होगा। सपोज ये एक सेल है, ये 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 अभी नया है, न्यू सेल है, ठीक है, एनसी। ये दो सेल्स प्रोड्यूस किया, अभी ये जो प्रोड्यूस किया, अभी ये ओल्ड हो गया, ये न्यू सेल हो गया, समझ रहे हो? फिर जब ये रिप्रोड्यूस करेगा, ये ओल्ड हो गया, ये न्यू सेल्स है अभी, ठीक है। फिर ये और एक बार जब प्रोड्यूस करेगा, ये लोग फिर से ओल्ड बन जाएंगे, समझ रहे हो? ये फिर ओल्ड बन जाएंगे और ये लोग न्यू बनेंगे, न्यू सेल्स। और ये हर न्यू सेल के पास एक एंजाइम होता है, एसेंशियल एंजाइम्स होता है, अपने आप फंक्शन करता है, उसका एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है। कैसे सरवाइव करेगा सेल? अब मैंने खुद बोला था ना, पूरा जीरो पे चलो। मैंने क्या बोला था? ईच सेल, हर एक सेल, इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, कैपेबिलिटी है उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए। वो खुद भी जी सकता है, बहुत छोटे छोटे है ये, फिर भी जी सकता है।
तो कैसे जिएंगे? उनका भी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस रहता होगा कि नहीं? हम कैसे जीते हैं? अगर हमें हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट या फिर 37 सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली, हमें थोड़ा सा भी ज़्यादा होता है, 99 हो जाता है या फिर 100 हो जाता है, वी फील feverish. Why is it said feverish? Because this is our optimum temperature. इससे कम ज़्यादा हुआ तो our body is not being able to cope up with the microorganisms of the surrounding, and we tend to feel chills, feverish. We shiver, our body shivers because we feel कि यार बहुत ठंडा लग रहा है, बुखार है, बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है, वो एटमोसफेयर के कंडीशन के साथ अफेक्ट मतलब कोप अप नहीं कर पा रहा है, सो इट अफेक्ट्स इन अ रॉन्ग वे। एज अ रिजल्ट हमें ठंडा लगता है, वी फील लाइक ज़्यादा हमें बेडशीट्स दे दो, हमें ज़्यादा चादर दे दो। दैट इज हाउ बेसिक, दिस आर कॉमन सेंस, राइट? वैसे सेम वे में सेल होता है, हर सेल का एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। न्यू सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, उनके पास एंजाइम्स होते हैं, पर वो एंजाइम्स आती कहाँ से? वो डीएनए से आते हैं। ठीक है, तो क्या पढ़े इन्हें बेसिक अगर हम देखें तो हम बस 5-6 चीज़ ही पढ़े, बार बार रिपीट कर रही हूँ। सेल के बारे में पढ़े, हर सेल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, राइट? एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं उसको। न्यूक्लियस होता है, कंपोनेंट है, ब्रेन ऑफ सेल। ठीक है, ब्रेन ऑफ सेल। साइटोप्लाज्म होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स। ओके, फिर क्या पढ़े सेल के बारे में? माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस, है कि नहीं? पावर हाउस है ये, पीएच नहीं है, बार बार बोल रही हूँ, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, फिर डीएनए के बारे में पढ़े, पढ़े कि नहीं? आई होप आई एम नॉट लीविंग आउट एनीथिंग। फिर हम लोग ग्रोथ के बारे में पढ़े थे, वहाँ से डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर देखे। फिर क्रोमैटिन आया था कि नहीं? फिर इसको और कंडेंस करोगे तो क्रोमोसोम्स आए थे। फिर हम लोग न्यूक्लियस को जूम इन करके देखे थे, ये सेल था, न्यूक्लियस था, इसको जूम इन करो तो क्या दिख रहा था? ये ऐसा ऐसा होता है, दिस इज क्रोमैटिन, दिस इज न्यूक्लियर, यस न्यूक्लियस, ऐसा होता है। जैसा ये क्या होता है? से सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यस यू आर राइट। वैसे ये क्या होता है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, फिर क्या पढ़े? सेंट्रल डॉग्मा, डीएनए टू आरएनए। व्हाट इज दिस प्रोसेस नोन एज? बोलो, व्हाट इज दिस ए एंड व्हाट इज दिस बी? पॉज द वीडियो फॉर लाइक 2 seconds 3 seconds, बस दो ही नाम है। दिस इज ट्रांसक्रिप्शन, दिस इज ट्रांसलेशन। ठीक है, आई गेस। फिर क्या पढ़े थे? सुक्रोज था, सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज करता है, हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी हर सेल को कहाँ से मिलती है? एंजाइम्स डीएनए से मिलती है। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द बेसिक कंपोनेंट्स, जिससे ईच डीएनए, हर डीएनए में ना ऐसा 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 बहुत अंदर भी इसका भी बहुत सारा फंक्शनिंग होगा, होगा कि नहीं? सो वी आर नाउ रीडिंग, ऐसे इस तरफ भी होगा। ये ना सारे कोड से बने हैं, दीज आर ऑल कोड्स। सपोज एक छोटा पार्ट को हम जूम करते हैं, ओके, जैसे ए जी सी टी, टी सी जी ए। आई नो पीपल हु हैव बायोलॉजी बैकग्राउंड दे विल गेट इट इजीली, बट ठीक है, वी आर टॉकिंग फॉर एवरीवन, not just for people who had opted biology. Okay, so अब हम क्या करेंगे? So what is A? A is adenine, guanine, cytosine. Okay, and then thymine. These are the 4 components of DNA. So ये क्या है? ये क्या है? A के साथ ना हमेशा, remember,
ए के साथ हमेशा थायमिन रहता है और टी के साथ ए इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री। ए एंड टी आर कॉम्प्लीमेंट्री, टी होगा तो ए होगा। पर सी के साथ जी जाता है, जी के साथ सी जाता है। ओके, दिस इज इन केस ऑफ डीएनए। तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है ये, है कि नहीं? इसको पूरा अच्छी तरीके से प्रोसेस करना इज डिफिकल्ट, इसीलिए हम इसको जूम करके सिंगल स्ट्रैंड बनाते हैं, उसको आरएनए की आकृति देते हैं। ओके, फिर वहां से हम लोग फंक्शनिंग करते हैं। आरएनए में भी SHR है, बस द डिफरेंस इज ना थाइमिन के जगह पे यूरासिल आता है वहां पे। ओके, वहां पे थाइमिन नहीं होता है, सिर्फ यूरासिल आता है। अब हम समझेंगे, हम बोले थे, आपको याद होगा तो जस्ट कुछ मिनटों पहले, कि डीएनए इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आरएनए क्या करता है? आरएनए उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। फिर प्रोटीन्स क्या करते हैं? प्रोटीन एंजाइम लेके आता है सो दैट ये प्रोसेस सही से चल पाए। ठीक है, इंटर रिलेटेड है, दिस इज वेरी इंटर रिलेटेड। अब पढ़ेंगे एम आर एन ए। आर एन ए भी बहुत टाइप्स है, एम आर एन ए है, आर आर एन ए है, टी आर एन ए है, पर हम पहले पढ़ेंगे एम आर एन ए, विच इज नोन एज मैसेंजर आर एन ए। हमने पहले भी बोला, आरएनए का काम होता है इंफॉर्मेशन जो डीएनए से मिलता है स्टोर होके उसको प्रोसेस करके प्रोटीन्स के पास भेजता है, सो दैट दीज आर द प्रोसेसेस दैट आवर बॉडी नीड्स टू गो थ्रू। या फिर प्लांट्स में भी, हर जगह में, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर जगह में दीज आर द प्रोसेस दैट नीड्स टू बी डन। तो वो मैसेंजर आरएनए क्या करता है, वो मैसेज लेता है एंड इट कैरीज ऑन द मैसेज कि ये इंफॉर्मेशन मैं लेके आई हूँ, इसको हमें प्रोसेस करना है। दैट इज द वर्क ऑफ एमआरएनए, and that is done how? Through transcription. Okay, इसका और भी बहुत कंपोनेंट्स है, लाइक इट वो कैपिंग भी करता है, स्प्लाइसिंग भी करता है, इंट्रॉन्स को रिमूव भी करता है। ये सब हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। ओके, एक दिन में सारे टेक्निकल चीज नहीं याद रहेगी। याद है सेंट्रल डॉगमा में बोल रही थी, सेंट्रल डॉगमा ऑफ जेनेटिक्स, सेंट्रल डॉगमा ऑफ जेनेटिक्स वो क्या है? दैट इज डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन्स। ये ट्रांसक्रिप्शन, ये ट्रांसलेशन, that is known as central dogma of genetics. ओके, जो कि लिविंग सेल्स में ही होती है। ओके, पर एज वी नो, साइंस बच्चों को तो पता ही होगा, हर लॉ के पीछे एक एक्सेप्शन होता है, विदाउट एक्सेप्शन कुछ नहीं होता है। द एक्सेप्शन इज वायरसेस। ओके, द एक्सेप्शन इज वायरसेस। वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे। वायरस एक ऐसा जीव है जो कि, ऐसे ही बोल सकते हो, लिविंग प्लस नॉन लिविंग बाई टू, क्योंकि उसके पास कुछ लिविंग के भी फीचर्स है, नॉन लिविंग के भी फीचर्स है। समझ रहे हो? उसको बॉर्डर लाइन बोलते हैं, इसलिए द डेफिनेशन इज गिवन कि वायरसेस एक्ट एज द बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग क्यों? क्योंकि उनके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म के जैसा डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन्स है। ओके, बट नॉन लिविंग क्यों? नॉन लिविंग के पास कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, इनके पास भी कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। ओके, डीएनए, आरएनए, सेलुलर स्ट्रक्चर्स, प्रोटीन्स, बहुत चीज़ें हो गई है, ओवरलैप हो जा रही है। लेट्स सिंप्लीफाई। तो वायरसेस क्या है? मैंने क्या बोला? बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्यों ऐसा? क्योंकि लिविंग के भी कुछ फीचर्स मैच करते होंगे, नॉन लिविंग के भी कुछ फीचर्स मैच करते होंगे। वायरसेस ना बिना होस्ट का कुछ नहीं कर सकता। होस्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर वायरस टू फंक्शन एनीथिंग। वो तब भी रिप्रोड्यूस कर पाएगा और मल्टीप्लाई कर पाएगा अपना सेल्स को जब वो किसी को इन्फेक्ट करता है। reproduces only when it reproduces only when it infects someone। एक को अटैक करता है, बीमार बनाता है, फिर दूसरे को जाके बनाता है। लाइक ये रिप्रोड्यूस ओनली विद व्हेन इट इन्फेक्ट समवन। इसका मतलब क्या है? कि वो एक होस्ट बॉडी हो, होस्ट सेल हो, वो किसी को लेकर ही चलता है। वो अपने आप ओन सेल्फ रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता बिना होस्ट का। होस्ट इज नीडेड,
देन ओनली इट कैन रिप्रोड्यूस। बिना होस्ट का इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस ऑन इट्स ओन। वो डीएनए यूज करता है, आरएनए भी यूज करता है। आरएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है होस्ट का, क्योंकि जिस पे भी करेगा उसका एक अपना डीएनए आरएनए तो होगा ही ना। और वो क्या करता है? वहीं पे इंटीग्रेट करता है। सुनो, बात को समझो। ऐसा है कि कोविड वायरस आया था, हम उसको वायरस बोलते थे, कोविड वायरस आ गया, कोविड वायरस आ गया, सबको अफेक्ट कर रहा है भाई, मल्टीप्लाई कर रहा है। वो कैसा करता है? उसके लिए कौन होस्ट था? ह्यूमंस थे। तो वो क्या करता है? ह्यूमंस का डीएनए है अपना, ठीक है। तो क्या हुआ? वायरस का भी अपना डीएनए होता है, हमने पढ़ा। लिविंग है, नॉन लिविंग है। लिविंग क्योंकि उसके पास अपना डीएनए आरएनए होता है, पर वो डीएनए आरएनए फंक्शन नहीं कर पाएगा अगर वो उसको एक होस्ट नहीं मिला। तो समझो, अगर सपोज इसके पास वायरस, ये वायरस है, ठीक है, ये ह्यूमन है, इसके पास अपना डीएनए आरएनए सब कुछ है, इसके पास भी है, चलो डी आर ऐसा लिख दी हूँ, ठीक है, पी प्रोटीन सब कुछ है। ये ऐसा अकेला नहीं चल सकता, इसका कुछ नहीं होगा, इसका अंतिम में ही हो जाएगा। ये क्या करेगा? इसके साथ इंटीग्रेट करेगा, और ये अपना डीएनए को जब ये वाला डीएनए पे इंटीग्रेट करेगा ना, ये बहुत माइन्यूट प्रोसेस है, ऐसा लिख दे रही हूँ मैं, लेकिन डीएनए ऐसा होता है ना, डबल हेलिकल। तो ये क्या करेगा? यहाँ पे ना सपोज अपना एक छोटा सा पार्ट लेगा, ठीक है, यहाँ से एक छोटा सा पार्ट वो काट देगा, यहाँ से एक छोटा सा पार्ट वो काट देगा, डोंट नो व्हाट्स गेटिंग रॉन्ग, काट देगा, और यहाँ से एक छोटा सा पार्ट लेगा, और यहाँ यहीं से वो इंटीग्रेट कर देगा, ये वाला यहाँ जाके ये कुछ ऐसा बन जाएगा फिर। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, पर समवट ऐसा ही होता है, ठीक है, मतलब मैं समझा रही हूँ कि कैसे इंटीग्रेट होता है। तो वो क्या करेगा? ये जो वायरस का है, इसको रिमूव कर दिया, ये वाला जगह को अफेक्ट करके अब ऐसा हो गया, ओके। अब ये वाला जगह होगा, धीरे धीरे वो और एक जगह अफेक्ट करेगा, एक बार घुस गया ना, फिर शायद यहाँ पे करेगा, यहाँ पे करेगा, ऐसा चलता है वो, ओके। देन माइट शायद यहीं पे कर पाए, ओके, आई डोंट नो व्हाट्स गेटिंग रॉन्ग, बट ठीक है। तो ऐसा जब करेगा ना, सपोज जब हम ये वाला स्ट्रैंड से कंडेंस करके देखेंगे, हम वी विल सी, ऑब्वियसली क्या देखेंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी वायरस आ चुका है। वायरस जब एक बार आ चुका है, तो हम जब, तो ऑब्वियसली हमारे क्रोमैटिन्स में वायरस आ गया होगा, और वो ऐसा अफेक्ट कर दिया होगा, एंड देन वो अपने आप मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रोमोसोम्स में घुस के, वो मल्टीप्लाई कर करके, सपोज शायद मैं पिंक यूज कर रही हूँ बीच में, इसलिए इट्स नॉट गेटिंग, ऐसे ही समझ लो, ये वाला पार्ट को अफेक्ट कर दिया, ये वाला पार्ट को अफेक्ट कर दिया, फिर वो हर जगह से अफेक्ट करेगा, एंड द होल बॉडी गेट्स अफेक्टेड। पूरा टिपिकल एग्जैक्ट प्रोसेस नहीं है, ऐसा नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, पर बेसिक समझा रही हूँ। एक जगह को उठाता है, काट देता है, फिर अपना घुसा देता है, इंटीग्रेट करता है। तो बेसिकली वो किसी को हेल्प से वो रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करता है। पर जब एक वायरस ना बहुत बार मल्टीप्लाई हो गया, लाइक जितना उसका कैपेसिटी था उससे बहुत गुना ज्यादा, तब वो इट डाइज। जैसे कोविड वायरस धीरे धीरे केसेस घटे ना, कैसे घटे? वो बहुत मल्टीप्लाई हुआ, हर किसी के मतलब अंदर घुसने की कोशिश की, एंड बहुत बार मल्टीप्लाई होने के बाद इट फाइनली डाई। तो क्या होता है, ये मैं ड्राइंग करके दिखा रही थी जस्ट सो दैट आपको एक बेस बन जाए। अभी मैं बताती हूँ और एक अच्छे से, और एक बार। सपोज ये ओरिजिनल है, ठीक है, ये ह्यूमन का हो, किसी का भी हो, ये इन्फेक्टेड है, ठीक है, ये वायरस का है, ठीक है, ऑब्वियसली वायरस का इन्फेक्टेड होगा। ओरिजिनल के पास डीएनए होता है, आरएनए होता है, प्रोटीन्स होता है। सिमिलरली यहाँ पे वायरस का वायरल डीएनए होगा, वायरस का वायरस आरएनए होगा, वायरस का वायरस प्रोटीन्स होंगे, होंगे कि नहीं? धीरे धीरे क्या करता है, इट विल अफेक्ट हियर, इट विल अफेक्ट हियर, इट विल अफेक्ट हियर इन दिस प्रोसेस साइमल्टेनियसली, एंड इसके साथ इंटीग्रेट होके पूरा पूरा खराब कर देता है। सपोज एक सिचुएशन पकड़ो जब वायरस के पास ना खाली आरएनए है,
और डीएनए नहीं है, ओके, नो डीएनए, इट हैज ओनली आरएनए, तो वो कैसे करेगा? पहले तो डीएनए को ही पकड़ेगा ना ब्रो, क्योंकि डीएनए को हम कंडेंस करते हैं, फिर हमें सिंगल स्ट्रैंड मिलता है, फिर आरएनए होता है, मतलब समझ रहे हो ना, दिस इज डीएनए। हम डीएनए को जब बहुत जूम इन करके देखते थे, एक सिंगल स्ट्रैंड दिखता था, फिर क्रोमैटिन दिखता था, फिर क्रोमोसोम्स दिखता था, ऐसा ही चलता था, राइट? तो कैसे करेंगे? अगर सिर्फ आरएनए है तो उसके पास पहले तो उसको डीएनए चाहिए, क्योंकि वो पहले डीएनए को अफेक्ट करता है। तो वो क्या करेगा? हम लोग पढ़े डीएनए टू आरएनए क्या था? ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए टू डीएनए भी होता है, विच इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ओके, दिस इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो वो एक एक्सेप्शन केस है जहाँ सिर्फ आरएनए होता है और डीएनए नहीं होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ओके, तो वहाँ पहले वो क्या करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, आरएनए से डीएनए बनता है, ठीक है, फिर वही डीएनए फिर से अगेन यूज होके सेम प्रोसेस, सेंट्रल डॉगमा, आरएनए से डीएनए से प्रोटीन, ओके। तो फिर आरएनए क्या करता है? डीएनए एक बार मिल गया तो डीएनए को अटैक किया, फिर आरएनए पे इंटीग्रेट करता है एंड फॉर्म्स वायरल आरएनए, फिर धीरे धीरे वायरल प्रोटीन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप जानते हो तो रेट्रोवायरस इज अ नेम, ओके, जहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पहले होता है आरएनए से डीएनए। रेट्रोवायरस कहाँ पे यूज होता है? बहुत कॉमन, ये तो आप सुने ही होंगे, एचआईवी। कहाँ होता है? एड्स, ठीक है, ये एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज है। फिर बाद में आगे जाके पढ़ेंगे हम जब इम्यूनिटी में कि इनेट इम्यूनिटी क्या होता है, जो बचपन से हमें मिलती है जो इम्यूनिटी, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, जो हम एक्वायर करते हैं, इसके उसका नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज है, तो हम पढ़ेंगे। अभी के लिए बस जान लो एच आई वी एड्स रेट्रोवायरस होता है जहाँ पे पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर सेंट्रल डॉगमा फॉलो होता है, फिर डीएनए आ जाता है, फिर डीएनए से आरएनए इंटीग्रेट करता है वायरल डीएनए, फिर अफेक्ट करता है, ठीक है, समझ गए ना? डीएनए पहले नहीं आता है, जहाँ पे रिवर्स ऑफ ओरिजिनल होता है, जो नॉर्मल होता है उससे उसका रिवर्स होता है। तो हम इससे क्या पता चला? वायरस ये सिर्फ होस्ट पे करता है, एक होस्ट सेल पकड़ता है, जकड़ता है, उसको इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकता। और वायरस जब इंसान के बॉडी पे जाता है, वो डीएनए पे अफेक्ट तो करता है, पर डीएनए बहुत बड़ा चीज है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे, देयर आर वेरी 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 माइन्यूट थिंग्स दैट इज इनसाइड डीएनए। डीएनए इज यूज्ड फॉर, डीएनए के एप्लीकेशंस बहुत है, देयर आर मल्टीपल फोल्ड्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए बार कोडिंग, बहुत सारी चीजें। सो हाउ आर viruses used? Viruses, where do viruses go and attack first? They affect T cells. These are the memory cells. You know, once you get fever, the second time you get fever, if you get instant fever, one after the other, या फिर ये होता है, जो नॉर्मल केस होता है मैं बोलती हूँ, एक्सेप्शन भी होते हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट द नॉर्मल केस। सपोज दिस पर्सन ए एंड दिस इज पर्सन बी एंड दिस इज पर्सन सी, ओके, ये तीनों एक जगह पे रह रहा है। सी को ना पहले से चिकन पॉक्स हो चुका है, ओके, ही हैज ऑलरेडी सफर्ड फ्रॉम इट, एंड ए को अभी अभी हुआ है, ओके, एंड ए इज इन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद बी एंड सी बोथ साइमल्टेनियसली, पर ना चिकन पॉक्स इसको नहीं होता है, पर इसको ट्रांसफर हो जाता है बी को। होना तो दोनों को चाहिए भाई, सर्दी जुकाम होती है दोनों को होती है ना, एक बार हो जाती है तो नहीं होती चिकन पॉक्स, क्यों ऐसा बोलते हैं? दो देर आर एक्सेप्शंस, पीपल डू सफर, बट नो, जनरलिस्टिक केस को पकड़ते हैं तो नहीं होता है। व्हाई इज इट हैपनिंग सच? क्योंकि टी सेल्स, जब इसके पास में आया होगा चिकन पॉक्स का वायरस ना, जब चिकन पॉक्स का वायरस इसके पास में पकड़ के आया होगा, इसका बॉडी इसको अंदर जाने नहीं दिया होगा, बिकॉज उसके टी सेल एंड बी सेल्स उसको रिमाइंड किए होंगे कि हमारे पास ना इम्यूनिटी है, हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है अपने बॉडी के मेमोरी सेल्स के अंदर, जो कि रेजिस्ट करते हैं कि नो, वी कांट लेट यू सफर अगेन, बिकॉज इसका जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है चिकन पॉक्स का, इसके बॉडी में है फिल, इसके बॉडी में नहीं है, तो ही सफर्स एंड इसका अंदर जा चला जाता है एंड ही सफर्स थ्रू आउट। बट दिस बॉय डज नॉट, बिकॉज ही हैज ऑलरेडी सफर्ड, उसके पास उसके मेमोरी सेल्स याद दिलाते हैं कि यू ब्रो यू कांट सफर अगेन, ओके। अब हम पढ़ेंगे, हमें पता है हमने एचआईवी के बारे में बोल रखा था,
ओके, तो दिस अफेक्ट्स, याद रख लो ये वाला, CD4 प्लस टी लिम्फोसाइट को अफेक्ट करता है। ओके, HIV जब होता है तो वो किसको इन्फेक्ट करता है? इट अफेक्ट CD4 प्लस टी लिम्फोसाइट्स, CCR5 एंड CXCR4 रिसेप्टर। रखना है रखो, नहीं रखना है मत भी रखो, इट्स नॉट दैट ग्रेटली इंपॉर्टेंट, बट इट्स गुड टू हैव मोर इन्फॉर्मेशन, राइट? तो रिसेप्टर क्या करता है? सेल में घुसता है, फिर 3 एंजाइम्स होते हैं। कैसे काम करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पहले होगा, फिर इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करता है DNA के साथ, इंटीग्रेट, तो उसका एंजाइम का नाम है इंटीग्रेज। ओके, एंड देन न्यूक्लियस। ओके, उसको प्रोटीज भी बोलते हैं, वो अपना न्यूक्लियस को अफेक्ट कर देता है, फिर काम खत्म। तो हम उसको किसी भी स्टेज पे ना ब्लॉक कर सकते हैं टू प्रिवेंट HIV। पर हम कैसे करेंगे इसको समझते हैं कि ये 3 एंजाइम कैसे काम करते हैं। ये 3 एंजाइम कहाँ पे काम करेंगे? जब DNA को पहले वायरस अफेक्ट करता है ना, पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिस where why reverse transcriptase? It is only in case when virus is having only RNA and no DNA. Okay, and then integrase, इंटीग्रेट करता है DNA के साथ। अरे भाई, RNA से DNA पहले हुआ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो गया, ये वाला प्रोसेस पहले, प्रोसेस 1। फिर सेकंड प्रोसेस, DNA फिर RNA के पास जाता है इंटीग्रेज वाला एंजाइम लेके, सेकंड एंजाइम, ठीक है, इसको सेकंड नाम देती हूँ। फिर न्यूक्लियस जाता है, प्रोटीन, प्रोटीन्स पे न्यूक्लियस होते हैं, वो न्यूक्लियस को अफेक्ट करते हैं एंड पूरा सेल गया वायरली अफेक्टेड एंड यू सफर फ्रॉम द डिजीज। तो कैसा होता है और एक बार समझते हैं। ये हो गया RNA, यहाँ हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सपोज यहाँ पे हमारा DNA समझो ऐसा कहीं पड़ा है। ओके, अरे भाई समथिंग्स तो रॉन्ग। ओके, सपोज दिस इज DNA। ओके, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो गया। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होने के बाद, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में क्या होता है? RNA टू DNA होता है ना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में। फिर DNA क्या करता है? इंटीग्रेट करता है यूजिंग इंटीग्रेज एंजाइम। फिर वो प्रोटीज के पास जाता है। जब प्रोटीज के पास जाता है ना, तो वहां पे R+P, R+P मतलब वो राइबोसोम्स, मतलब RNA जो कि प्रोटीन के लिए हेल्प करते हैं, एंड प्रोटीन्स मतलब RNA एंड प्रोटीन्स दोनों इंटीग्रेज से प्रोटीज, ये वाला प्रोसेस पे अफेक्ट दोनों होता है। ओके, एंड HIV ऐसा अफेक्ट करता है, स्टार्ट करता है अफेक्ट करना। ओके, कुछ क्वेश्चंस है, विल कीप द सेशन शॉर्ट, आई डोंट नो कितने वक्त हो गए भी है, आई हैव नॉट लुक्ड एट द टाइम दो, बट ठीक है, विल डू सम क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर। दिस इज 2016 का क्वेश्चन, प्रीलिम्स में आया था, ठीक है। सो द क्वेश्चन वाज, ट्राई करो, ठीक है, नहीं होता है नहीं होता है, छोड़ दो। आई नो आई हैव नॉट टॉट यू एवरीथिंग, बट ऐसा भी नहीं होता है ना कि सारा कुछ पढ़ के जाओ उसी से आता है। ऐसा भी तो क्वेश्चंस आते हैं ना वेर यू इंस्टेंटली गो एंड सफर देयर, एंड यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन एंड योर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एंड उससे दिमाग लगाना पड़ता है। जितना पढ़ाई हूँ उसके रिलेटेड ही चीजें पूछूंगी जो प्रीवियस ईयर में ही आया है, नॉट फ्रेम्ड बाय मी पर्सनली। ओके, सपोज देयर इज अ क्वेश्चन जो कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बायो informatics. Okay, the term transcriptome, okay, the term transcriptome, which is sometimes in news, it is referred to what? It refers to what? Okay, this is 2016 का question। वैसे मैं और भी questions रखी हूँ, but I don't know exactly कौन से year के थे, क्योंकि मैं year mention नहीं की हूँ, but yeah, I'll try जितना हो पा रहा है। I'll like give you 4 to 5 or maximum 6 questions। ठीक है, द क्वेश्चन हियर इज, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ट्रांसक्रिप्टोम, वो जो कि न्यूज में है हाल ही में, वो तब का क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा आया था अभी नहीं, रेफर्स टू व्हाट, अभी भी आता है ट्रांसक्रिप्टोम, ऐसा नहीं कि नहीं आता। तो ऑप्शन ए है ट्रांसक्रिप्टोम क्या है। ओके, रेंज ऑफ एंजाइम है क्या,
रेंज ऑफ एंजाइम्स इन जीनोम एडिटिंग। जीनोम एडिटिंग क्या है मैं बाद में पढ़ाऊंगी, आई नो हैव नॉट टॉट यू। आइडिया लगाओ, ठीक है। फुल रेंज ऑफ मैं पढ़ लूंगी, इफ आई एम राइटिंग टू बैड देन आई जस्ट रीड इट आउट फॉर यू, ओके। चलो बताओ। तो ट्रांसक्रिप्टोम क्या है? बायो इन्फॉर्मेटिक्स के टर्म में, डेवलपमेंट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक टर्म में ट्रांसक्रिप्टोम न्यूज में है, उसका क्या मतलब है? रेंज ऑफ एंजाइम है क्या? जीनोम एडिटिंग में जो यूज होते हैं जो एंजाइम, उसका रेंज है क्या? या फुल रेंज ऑफ mRNA मॉलिक्यूल्स जो कि एक्सप्रेस एक ऑर्गेनिज्म करता है, जो कि ऑर्गेनिज्म से एक्सप्रेस्ड है? या जीन एक्सप्रेशन के मैकेनिज्म का डिस्क्रिप्शन में है क्या, डिस्क्रिप्शन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ जीन एक्सप्रेशन? या जेनेटिक म्यूटेशन का मैकेनिज्म है जो कि सेल में होता है, विच टेक्स प्लेस इन सेल, टेकिंग प्लेस इन सेल? तो जीनोम एडिटिंग में होता है क्या, जीन एक्सप्रेशन में होता है क्या, जेनेटिक म्यूटेशन में होता है क्या, या mRNA मॉलिक्यूल्स का रेंज है? दिमाग लगाओ थोड़ा, अब मेरे को बोलो आंसर क्या होगा। देखो, आई अग्री कि मैंने आप लोगों को जीनोम एडिटिंग क्या है नहीं पढ़ाया है, जीन एक्सप्रेशन नहीं पढ़ा है, जेनेटिक म्यूटेशन तो नहीं पढ़ा है, लेकिन ये तो बताया है ना कि सेंट्रल डॉग्मा में क्या होता है, डीएनए से आरएनए का प्रोसेस क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। तो इतना तो समझ आना चाहिए आप लोगों को कि ट्रांसक्रिप्टोम है तो इसी वर्ड से आया होगा ट्रांसक्रिप्शन। और हम बार बार पढ़ रहे हैं कि और एक ही आरएनए के बारे में मैं आज पढ़ा ही हूँ, दैट इज mRNA, मैसेंजर आरएनए। मैंने ये भी बोला कि उसका और भी फंक्शन होते हैं, स्प्लाइसिंग और कैपिंग। इतना तो दिमाग लगा लो यार। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में डीएनए से आरएनए होता है, तो ये सब क्यों आएगा? इतना दिमाग नहीं लगाने का। mRNA मॉलिक्यूल का ही रेंज होता है जो कि ऑर्गेनिज्म एक्सप्रेस करता है। चलो दूसरा क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट बताना, ठीक है? विच इज द करेक्ट वन? क्वेश्चन है, वायरसेस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, फंगाई, फंजाई, जो बोलना है बोलो, एंड प्लांट्स। ऑप्शन ए है वायरसेस किसको इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है? 1 and 2 ओनली, 3 ओनली, 1 and 3, ऑल, जो कि 1 2 3 तीनों है। है ना? अभी बताओ चारों में से कौन सा वायरसेस कैन अफेक्ट या फिर इन्फेक्ट किसको, बैक्टीरिया, फंगाई, प्लांट्स? ऑप्शन 1 and 2, 3, 1 and 3, ऑल। बेसिक है यार, इतना तो समझो। वायरसेस सारे को अफेक्ट कर सकता है, सारे लाइफ फॉर्म्स को। बस उसको एक होस्ट चाहिए होता है। एक होस्ट मिल गया तो वो किसी पे भी मल्टीप्लाई कर सकता है। जैसे कि एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, कुछ में भी। जब वो प्लांट को अफेक्ट करता है ना, तो एल्गल वायरसेस का नाम सुने हो? एल्गल वायरसेस हो जाते हैं एल्जी पे, एल्गल वायरसेस होता है, आरएनए, डीएनए, ये सब इन्फेक्ट होता है वहां पे। जब एनिमल्स में अफेक्ट करता है तो एनिमल का डीएनए आरएनए को अफेक्ट करके वैसे चलता है जैसे ह्यूमंस पे करता है। जैसे फंगाई पे करता है या फिर फंजाई पे करता है, माइको वायरसेस होते हैं, लाइक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है वो सब, एंड दिस इज बीइंग अफेक्टेड बाय फंगाई। बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज इज अफेक्टेड बाय वायरसेस ओनली व्हेन वायरसेस अफेक्ट्स द बैक्टीरिया। जैसे कि सैनोफेजेस भी होते हैं, डीएनए को अफेक्ट करता है। तो क्या समझे, वायरसेस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, फंगी, प्लांट, सबको, ठीक है? और एक भी क्वेश्चन आया था। चलो, ऑप्शन ए बैक्टीरिया है, स्टेटमेंट नंबर 1।
ऑप्शन 2 फंगाई है, ऑप्शन 3 वायरसेस है। क्वेश्चन है विच ऑफ द above, विच ऑफ द above can be cultured in an artificial और सिंथेटिक मीडियम। कौन सा इसमें से आर्टिफिशियली व सिंथेटिक मीडियम पे हम कल्चर कर सकते हैं, मतलब लैब में कर सकते हैं। इन सिंपल टर्म हम आर्टिफिशियली कैसे कल्चर कर सकते हैं किसको? ऑप्शन ए है 1 एंड 2, बैक्टीरिया और फंगाई को, या फंगाई एंड वायरसेस को, या बैक्टीरिया एंड वायरसेस को, या सबको। इतना तो समझ आ रहा होगा, कोरोना वायरसेस जो हुआ वो किसके लिए हुआ? क्योंकि उसको होस्ट मिलता था वायरसेस को, वो होस्ट को यूज करके मल्टीप्लाई करता था। आर्टिफिशियली लैब में नहीं बनाया गया था वायरस। तो वायरसेस को काटो, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगाई हो सकता है, खत्म 1 एंड 2। वायरसेस आर्टिफिशियली कल्चर नहीं हो सकते, समझो बात को, क्योंकि आगे मैं पढ़ाऊंगी वायरसेस क्या क्या कर भी सकते हैं हम लोग लैब में वायरसेस के यूज से। लेकिन आर्टिफिशियल उसको ऐसा सिंथेटिक मीडियम में कल्चर नहीं कह सकता। आप लैब में जाके वायरस नहीं प्रोड्यूस कर सकते, ठीक है? इट रिक्वायर्स अ होस्ट। इससे ये तो समझ रहे हो ना कि वायरसेस से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो हाउ इंपॉर्टेंट द टॉपिक ऑफ वायरसेस इज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है? ये आज के लिए लास्ट है। फिर मैं और भी वायरसेस के कुछ क्वेश्चंस है जो मैं कुछ अटैच कर दूंगी यहाँ पे। ओके, ये स्टेटमेंट 2022 में आया था ये, ठीक है? कंसिडर द स्टेटमेंट्स। ओके, फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1 है असेस एज ऑफ अ प्लांट और एनिमल, असेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू डीएनए। ठीक है, डीएनए क्या क्या कर सकता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो, या फिर डीएनए बारकोडिंग हो, या फिर डीएनए का कोई दूसरा भी एप्लीकेशन हो, ये सब एप्लीकेशन के यूज से हम लोग क्या पहचान सकते हैं? ठीक है, क्वेश्चन ये था कि विथ रिस्पेक्ट टू दैट मैं उसके बाद स्टेटमेंट्स लिख दे रही हूँ। क्या डीएनए एज दे सकता है हमें प्लांट या एनिमल का, या फिर डिस्टिंग्विश हम लोग कर सकते हैं अमोंग स्पेशीज दैट लुक अलाइक। दैट लुक अलाइक मतलब जो लोग एक जैसा दिखते हैं, उनमें से भी क्या, उनमें दिखने में भी क्या थोड़ा बहुत फर्क है? क्या हमें वो डीएनए बारकोडिंग या फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या फिर डीएनए का कोई भी दूसरा एप्लीकेशन से हम लोग पता लगा सकते हैं क्या? और उसके मदद से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या कि अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट मटेरियल प्रोसेस्ड फूड में क्या मिलावट है? अनडिजायरेबल प्लांट या फिर एनिमल मटेरियल प्रोसेस्ड फूड में क्या है? कौन सा करेक्ट है? विच इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इन तीनों में से करेक्ट है? ऑप्शन है सिर्फ ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 2, ऑप्शन डी 2 एंड 3। ठीक, बता देती हूँ, ज्यादा नहीं लंबा करूंगी, पॉज करके तुम खुद आंसर ट्राई कर लेना। तो क्वेश्चन ये है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो या डीएनए बारकोडिंग हो, क्या इनमें से ये सब को यूज करके हम लोग डीएनए का क्या पता लग सकता है? हमें किसी का एज नहीं पता लगता डीएनए से, ठीक है ना? एज हम लोगों को कभी भी नहीं पता लगता है। हाँ, हम ये पता लगा देते हैं कि सेम जैसे दिखते हैं कि नहीं, ये लोग एक ही माँ के बेटे हैं कि नहीं, ये सब हम डीएनए की मदद से करते हैं, पर एज नहीं कर सकते डायरेक्टली। और भी कुछ माइन्यूट एप्लीकेशंस निकल रहे हैं फॉर टू assess the age of the plant or animal, but distinguish among species that look alike ये कर सकते हैं। अनप्रोसेस्ड फूड या फिर इन प्रोसेस्ड फूड में क्या मिलावट है, अनडिजायरेबल मटेरियल एनिमल का हो, प्लांट मटेरियल हो, कुछ भी अलग हो, अनशंड अनाब शब्द कुछ भी होता है, टेस्टिंग पे जाता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, फिर वो अपना सिक्योरिटी मेजर्स देता है, एफएसएसआई से सैंक्शन होके आता है, कुरकुरे पैकेट हो, चिप्स पैकेट हो, कुछ भी खाते हो, वो हम डीएनए की मदद से कर सकते हैं। सो ऑप्शन इज 2 एंड 3। ओके, और भी क्वेश्चंस है, मैं यहाँ पे कुछ अटैच कर दूंगी एंड यू पीपल कैन सॉल्व इट। ओके, आई जस्ट अटैच इट एंड
आई वुड वांट यू टू पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दोज टू क्वेश्चंस, और भी दे दूंगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कैसे न्यूक्लियस का डिस्कवरी हुआ, क्या सब सेल थ्योरी के बारे में कुछ ज़्यादा पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स, सेल वॉल क्या होते हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे बोल देती हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स, सेल ऑर्गेनल के बारे में और पढ़ेंगे। आज सिर्फ हम लोग क्या क्या पढ़े, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, ये थोड़ा बहुत देख लिए। और भी हम चीज़ें पढ़ेंगे जैसे कि वक्यूल क्या होता है, गोल्गी बॉडीज या फिर गोल्गी apparatus, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रोजोम, फिर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ ज़्यादा पढ़ेंगे। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो स्मूथ होता है, रफ होता है, क्या होता है, अगर स्मूथ होता है तो स्मूथ और रफ में डिफरेंस क्या है, एनिमल सेल प्लांट सेल में डिफरेंस क्या है, थोड़ा बहुत ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे सेल डिवीजन होता है उनमें, कैसे 46 क्रोमोसोम 22 23 होते हैं, देन हाउ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हैपेंस, all the topics which are important in with respect to our examination, we'll just read about it। और एक बार रिवाइज कर लेना, अपने आप से नोट्स अच्छे से बना लेना, एंड देन आई वुड वांट यू टू गो थ्रू दिस अगेन ट्वाइस। बस उसके बाद बंद कर देना, उसके बाद 5 दिन बाद और एक बार देख लेना, पूरा याद रह जाएगा और बिल्कुल कभी भूलोगे ही नहीं। कुछ क्वेश्चंस है जो मैं दिखाऊंगी कैसे क्वेश्चंस आते हैं, बट हाँ, वायरस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यू कैन सी फ्रॉम दिस। ओके, चलो, थैंक यू।